بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے آصف اور اردو وائس اسٹوریز میں آپ کا خوش آمدید۔ دوستوں، واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، کیونکہ بعد میں آپ واقعے میں ایسا کھوئیں گے کہ سبسکرائب کی طرف آپ کا دھیان ہی نہیں جائے گا۔ امید ہے آپ نے سبسکرائب کا بٹن دبا دیا ہوگا۔ چلیں وقت ضائع کیے بغیر اب واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ واقعہ محفوظ صاحب کی فیملی کا ہے، جو اورنگی ٹاؤن کراچی کے علاقے توحید کالونی سیکٹر 11 کے رہائشی تھے۔ محفوظ صاحب پیشے سے ایک ڈاکٹر تھے۔ ان کا 2003 میں انتقال ہو گیا اور پیچھے سے ان کے وارثین میں ان کی بیگم مسز محفوظ اور ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ سب سے بڑا بیٹا تھا، پھر بیٹی، پھر سب سے چھوٹا ایک بیٹا تھا۔ ان کے دونوں بیٹے USA میں ڈاکٹر کی پڑھائی پڑھ رہے تھے، جبکہ بیٹی کو بزنس میں انٹرسٹ نہ تھی، اس نے بس ماسٹرز تک پڑھا۔ محفوظ صاحب اپنی فیملی کے لیے کافی پراپرٹی اور بینک بیلنس چھوڑ گئے تھے۔ محفوظ صاحب کے انتقال کے کچھ سالوں کے بعد ان کا بڑا بیٹا اپنی پڑھائی مکمل کر کے پاکستان آ گیا اور اپنا ایک بڑا سا کلینک کھول لیا، جبکہ چھوٹا بیٹا ابھی USA میں ہی تھا اور اپنی ڈاکٹر کی پڑھائی پڑھ رہا تھا۔ اب مسز محفوظ کو اپنے بڑے بیٹے کی شادی کی فکر ہونے لگ گئی تھی، تو انہوں نے شادی سے پہلے ایک بڑا سا گھر بنوانے کا سوچا۔ اپنے بڑے بیٹے سے مشورہ کیا تو اس نے بھی اپنی ماں کی ہاں میں ہاں ملائی کہ ایک بڑا سا بنگلہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ مسز محفوظ نے اپنے کچھ پلاٹس میں سے ایک پلاٹ پر بنگلہ بنوانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کراچی کے سب سے اچھے آرکیٹیکٹ سے بنگلے کا نقشہ بنوایا اور ایسے ہی ایک اچھے اور مہنگے ٹھیکیدار کو ہائر کر کے اس سے اس بنگلے کی تعمیر کا کام شروع کروا دیا۔ مسز محفوظ اس بنگلے کو لے کر بہت حساس تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ کسی بھی کام میں ذرا سا بھی نقص نہ ہو۔ وہ سارا دن وہاں بیٹھ کر اپنی نگرانی میں اس بنگلے کی تعمیر کا کام کرواتی رہی تھی۔ آخر 8 مہینوں کی انتھک محنت کے بعد وہ 2 منزلہ بنگلہ تعمیر ہو گیا، اور اس 8 مہینوں کے بیچ انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کی منگنی بھی کر دی ہوئی تھی، اور بنگلہ تیار ہوتے ہی انہوں نے شادی کی ڈیٹ بھی فکس کر دی، جو 2 مہینوں کے بعد کی تھی۔ اور وہ دن بھی آنے میں دیر نہ لگی جب ان کے بیٹے کی شادی ہو گئی اور ایک چاند سی بہو ان کے گھر آ گئی۔ USA سے ان کا چھوٹا بیٹا بھی اپنے بڑے بھائی کی شادی اٹینڈ کرنے آیا ہوا تھا۔ خیر سے شادی کے معاملات نمٹ گئے، سب خوش تھے، پر ان کو ذرا بھی اندازہ نہ تھا کہ یہ خوشیاں کچھ دنوں کی مہمان ہیں اور ان پر ایک بہت ہی خوفناک آفت آنے والی ہے۔ ہوا یہ کہ شادی کے کچھ دنوں بعد محفوظ صاحب کا چھوٹا بیٹا، جو USA سے اپنے بڑے بھائی کی شادی اٹینڈ کرنے آیا ہوا تھا، ایک شام وہ اپنے بنگلے کی چھت پر کھڑا ہوا خوری کر رہا تھا کہ اچانک باہر سے لوگوں کا شور اٹھا اور مسز محفوظ کے گھر کی گھنٹی بجتی ہے۔ گھر کا ملازم دروازے پر دیکھنے جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد ملازم بری طرح ہانپتا ہوا مسز محفوظ کے بڑے بیٹے کے پاس آتا ہے اور پھلی ہوئی سانسوں میں بتاتا ہے کہ چھوٹے صاحب چھت سے نیچے گر گئے ہیں۔ بڑے بھائی پر سمجھو بجلیاں گر گئیں۔ وہ بھاگتا ہوا باہر جاتا ہے، لوگوں کے رش کو چیرتا ہوا سیدھا بھائی کے قریب آ جاتا ہے، فوراً اس کی نبض چیک کرتا ہے، اور ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے اس کو یہ جاننے میں ذرا بھی ٹائم نہیں لگا کہ اب اس کا بھائی اس دنیا میں نہیں رہا، وہ مر چکا ہے۔ چھوٹے بھائی کے جسم پر کوئی چوٹ کا نشان نہیں ہوتا، پر اس کی گردن ایک ڈھیلی رسی کی جیسے بری طرح سے ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے اور اس کی آنکھیں دہشت سے پھٹی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہاں کچھ لوگوں نے آنکھوں سے یہ سب منظر دیکھا تھا۔ وہ بتا رہے تھے کہ آپ کے چھوٹے بھائی کو ہم نے آپ کے بنگلے کی چھت پر کھڑے دیکھا۔ وہ دیوار پر کھڑا گردن گول گول گھما کے جھوم رہا تھا، اور اس کی گردن گھومنے کی سپیڈ بہت ہی تیز تھی۔ ہم نے آج تک کسی کو اتنی زور سے گردن گھماتے نہیں دیکھا۔ اس بھیڑ میں سے مختلف آوازیں آ رہی ہوتی ہیں کہ اس پر کسی نے کچھ کروایا ہے، نہیں اس پر جن آ گیا ہے، نہیں یہ تو کالا جادو لگتا ہے۔ مطلب وہاں جتنے لوگ تھے اتنی باتیں تھیں۔ محفوظ فیملی کے سبھی لوگ جنات اور جادو وغیرہ کو نہیں مانتے تھے، تو ان کا بیٹا کیسے مان لیتا؟ اور وہ تو USA کا ایک ڈگری ہولڈر اور گولڈ میڈلسٹ ڈاکٹر تھا۔ ادھر مسز محفوظ کو جب یہ خبر پہنچی، وہ اپنا دل پکڑ کے بیٹھ گئی اور ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا۔ ان کو فوراً سے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ وہاں 3-4 گھنٹوں کے بعد ان کی طبیعت میں کچھ سدھار آیا۔
जबकि बड़ा भाई घर में अपने भाई की लाश के पास बैठा था और सोच रहा था कि आखिर मेरे भाई के साथ हुआ क्या। वो छत पर भी जाता है पर वहां भी उसको कुछ गैर मामूली चीज नजर नहीं आती। वो बस ये हैरान था कि छत पर उसका भाई बिल्कुल अकेला था। वो स्लिप होके भी नहीं गिर सकता क्योंकि दीवारें 4 फुट ऊंची थीं। रह जाता है सुसाइड, पर उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। अगर कोई बात होती तो उन दोनों भाइयों में बेपनाह प्यार और दोस्ती थी। वो उसको जरूर शेयर करता, ना कि सुसाइड करता। वो तो एक खुश रहने वाला लड़का था, ना ही उसको रुपए पैसों की कमी थी, तो सुसाइड तो वो कर ही नहीं सकता। पर लोगों ने बताया कि वो छत की दीवार पर खुद खड़ा झूम रहा था। 1-2 बार उसके जहन में लोगों की बातें आई कि क्या पता कोई जादू वगैरह, पर उसी टाइम उसने खुद से व्हाट रबिश बोला और ये वाला ख्याल जहन से झटक दिया। उसने फैसला किया कि अपने भाई की पोस्टमार्टम करवाएगा। वो अपनी वालदा मिसेस महफूज को इस मामले से आगाह करता है और अपनी ख्वाहिश जाहिर करता है कि वो उसकी पोस्टमार्टम करवाना चाहता है। वालदा खुद गम में निढाल होती हैं, कहती हैं तुमको जो बेहतर लगे बेटा देख लो। वो भाई की डेथ बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है, जबकि बाकी के रिश्तेदार हस्बे दस्तूर घर आई नई बहू को मनहूस करार देने और दूसरों के कान भरने वाले फ्राइज को अंजाम देने में मसरूफ थे। पर मिसेस महफूज और उनके बच्चे इन सब को नहीं मानते थे। अगले दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, जिसको पढ़कर सबके पैरों के नीचे से जमीन गायब हो जाती है। खुद लड़के का भाई भी चकरा कर रह जाता है, क्योंकि उस रिपोर्ट के मुताबिक उसके भाई की मौत गर्दन टूटने से नहीं हुई होती। ये सच है कि गर्दन भी टूटी थी, पर उसकी मौत की वजह थी उसके दिल का खून की सप्लाई बंद कर देना। और रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि खून की सप्लाई इसलिए बंद हुई क्योंकि उसका दिल ही गायब था। मतलब बिना सीना चीरे एक इंसान का दिल कैसे गायब हो सकता है? पोस्टमार्टम से पहले जब उसकी लाश के कपड़े चेंज किए गए थे तब उसका बड़ा भाई वहीं खड़ा था। उसके जिस्म पर कोई चोट का निशान नहीं था। वो खुद हैरान था कि बिना किसी ऑपरेशन के दिल का गायब हो जाना वो चकरा कर रह गया था। उसको समझ नहीं आ रही थी कि ये सब कैसे मुमकिन है। अभी वो इस झटके से बाहर ही नहीं आया था कि आगे की रिपोर्ट पढ़ के उसको एक और झटका लगा कि उसके भाई की गर्दन की सारी हड्डियां टूट के चूरा हो गई थी, जो कि गिरने की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि उसकी गर्दन को किसी ताकतवर चीज ने इतने जोर से दबाया कि उसकी गर्दन की सारी हड्डियां टूट के चूरा चूरा हो गई। जो भी ये सुनता उसको यकीन नहीं आता कि ये मामला क्या है। खैर, वो लोग अपनी किस्मत को रोते उसको दफना देते हैं। उसको दफनाने के 1 हफ्ते के बाद एक शाम मिसेस महफूज की तबीयत खराब होने लग जाती है। उनका सांस फूलना शुरू हो जाता है और ऐसे लगता है जैसे सीने और कंधों पर कोई भारी चीज रखी हुई हो। उनका बेटा फौरन उनको हॉस्पिटल लेके भागता है। उनके काफी टेस्ट वगैरह करवाए जाते हैं, सब रिपोर्ट्स क्लियर आती हैं। वो उनको लेकर घर आ जाता है। घर आकर फिर से उनकी तबीयत वैसी ही होने लग जाती है। दर्द इतना बढ़ जाता है कि उनसे ना सोया जा रहा होता है और ना ठीक से सांस लिया जा रहा होता है। बस हाय हाय की आवाजें निकाल रही होती हैं। उनका बेटा उनको पेन किलर और नींद का इंजेक्शन लगा देता है, जिससे वो कुछ घंटे सुकून से सो जाती हैं। और उनकी बहू भी उनका हर मुमकिन ख्याल रखती हैं, टाइम पर दवाई, टाइम पर खाना पीना वगैरह। फिर मिसेस महफूज की ऐसी तबीयत हर 2-3 दिन में होने लग जाती है। जब तबीयत खराब हो हॉस्पिटल लेके जाएं, कुछ बेहतरी आ जाए। और जो टेस्ट करवाए जाते वो सब क्लियर आते। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनको कोई बीमारी नहीं थी। काफी रिश्तेदारों ने कहा कि ये कोई जादू वगैरह की अलामात लग रही हैं, आप किसी अच्छे आलिम से रुजू करें। अब मिसेस महफूज के बेटे का जहन भी कुछ कुछ उस तरफ जाने लग जाता है, पर अब भी उसका दिल किसी आलिम वगैरह पर नहीं मान रहा होता। 2 दिन बाद शाम के टाइम उसकी वालदा की तबीयत फिर से खराब होने लग जाती है और आज वो अजीब तरीके से अपनी गर्दन गोल गोल घुमा के झूम रही होती है। ये देखकर उनका बेटा खौफ में आ जाता है और उसको अपने छोटे भाई और उसकी दर्दनाक मौत वाला वाकया याद आ जाता है। वो फौरन अपनी वालदा को नींद का इंजेक्शन लगाता है, जिससे वो फिलहाल सुकून में आ जाती हैं और सो जाती हैं। फिर उनका बेटा अपने रिलेटिव्स को फोन करके मौजूदा हालात से आगाह करता है।
अब उसको यकीन आ गया होता है कि वाकई ये कोई अलग तरह के ही मामलात हैं। वो अपने रिलेटिव्स को कहता है कि कोई अच्छा सा आलिम आपकी नज़र में है तो जल्दी से घर लेकर आए। थोड़ी देर में उसके रिलेटिव्स एक आलिम को ले आते हैं। तब तक मिसेस महफूज को भी होश आ गया होता है। अब वो नॉर्मल थी और उनको कुछ याद नहीं था। वो आमिल उनको सामने बिठाकर पढ़ाई शुरू करता है। कुछ देर में वो अपनी आंखें बंद करके दोबारा से झूमना शुरू हो जाती हैं। उनके बेटे ने आगे बढ़कर उनको संभालना चाहा तो आलिम ने उसको इशारे से दूर रहने का बोला। वो झूमते झूमते अचानक से ठहर गई और अपनी बंद आंखें खोलती हैं। उनकी आंखें देखकर उनके घर वाले और रिलेटिव सब डर जाते हैं, क्योंकि वो अंगारों की तरह लाल हो रही होती हैं और उनके मुंह से भारी मर्दाना आवाज में गालियां निकलती हैं जो वो आलिम को दे रही होती हैं। आलिम पूछता है, कौन है तू, क्या चाहता है, क्यों इनको परेशान किया हुआ है? वो जिन जोर जोर से हंसता है और बोलता है कि इस औरत ने अपने बंगले को बनवाते टाइम यहाँ मौजूद दरख्तों को कटवाया था। उन दरख्तों में से एक दरख्त पर मेरा घर था और उस दरख्त की शाख पर मेरा सबसे छोटा बेटा सो रहा था, जो नीचे गिरकर मर गया। मैंने उसी टाइम कसम खाई थी कि मैं सबसे पहले इस औरत के सबसे प्यारे बच्चे को दर्दनाक मौत दूंगा। जो ये अपनी आंखों से देखेगी वही दर्द महसूस करेगी जो दर्द मैंने उस दिन महसूस किया था। उसके बाद इस औरत को भी नहीं छोड़ूंगा। इसके बच्चे को तो मैंने मार दिया और बिल्कुल वैसे ही गिराकर मारा जैसे इसने मेरे बच्चे को गिराकर मारा था। अब इसकी बारी है, आज मेरा बदला पूरा होगा। वो जिन कह के लगा रहा था और साथ साथ बोलता जा रहा था। इससे पहले कि आलिम कुछ और बोलता या करता, मिसेस महफूज की आंखें खुलकर इतनी फैल गईं गोया अभी डेले से बाहर निकल आएंगी, और वो जमीन पर गिर गईं। उनके बेटे, बहू और बेटी ने भागकर उनको उठाया, पर उनकी गर्दन भी बिल्कुल उसके छोटे बेटे की तरह किसी ढीली रस्सी के जैसे होकर लटक गई थी। उसके बड़े बेटे ने उसकी नब्ज चेक की, वो भी इस दुनिया से जा चुकी थी। और अब उनके बेटे को यह समझने में भी देर ना लगी कि उनका दिल भी उनके सीने से गायब हो चुका है और वो जिन अपना बदला लेके जा चुका है। आलिम साहब बोले कि अगर कुछ दिन पहले मुझे इन मामलात से आगाह कर देते तो शायद मैं तुम्हारी वालदा को बचा पाता, और अगर तुम्हारी वालदा घर की तामीर से पहले मुझे यहाँ एक बार बुला लेती तो मैं ऐसे हालात की नौबत तक नहीं आने देता। दोस्तों, आप सब लोगों से गुजारिश है, जब भी आप अपने घर में किसी दरख्त को काटें तो इससे पहले किसी आमिल को लाजमी दिखा दिया करें कि हम ये दरख्त काटना चाहते हैं। अगर वो इजाजत दे तो इसकी निगरानी में कटवाएं, वरना ये आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है, क्योंकि अक्सर दरख्तों पर जिन्नात का बसेरा होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए किस्से, एक नए वाक़े के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।